And I want to come back to this whole question of आप इतने कंजर्वेटिव फैमिली से हो जहाँ पे आपको डायरेक्टर बनने का शायद चांस नहीं मिलता था, लेकिन आपकी मदर ने, आपके भाई साहब ने हेल्प की, मदर ने इतना इनकरेज किया। आप जैसा मैंने शुरू में बोला कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं फिल्मों के, वो इतने अतरंगी क्यों होते हैं? वो इतने अब तो बोलते हैं, देखिए यश जी की फिल्म है लेकिन मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, फिर वो नहीं रहती हैं, उनकी बेटी होती है, फिर मैं उसकी बेटी से प्यार करने लग जाता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करने लग जाती है। एक लड़की से प्यार करता हूँ, दूसरी से भी करता हूँ, फिर दोनों से शादी करके खुश रहता हूँ। और एक अभी आप खुद ही बता रहे थे कि उसको मैं प्रेग्नेंट कर देता हूँ, फिर वो भाग भी जाता हूँ, मतलब कुछ अलग सा और भी है बहुत सारी। तो आपके दिमाग में you being so conservative, you being so gentle, you being so honest, you being so earnest, how is this all this moral and social fabric does not surround you? या आपको लगता है क्योंकि कोई छिछोरापन कभी नहीं होता उस बातों में, घटियापन कुछ नहीं होता, वो भी खूबसूरत ही लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई बार देखकर तो मुझे लगता है कि मैं भी यही करना शुरू कर दूं, इतना अच्छा लगता है। बट क्योंकि आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप करने नहीं देते। बट द होल हाउ डज दिस स्ट्रेंज डाइकोटमी एग्जिस्ट? ये दो चीजें कैसे एक ही इंसान में है कि conservative, love, gentleness, and then suddenly a topic which is this word you use is honesty, is the honesty. हर ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी डिजायर जो है to be loved more and more, again and again. If somebody says I've loved and बस हो गया, is somewhere telling a lie. तो एक बार हुआ फिर दिल करता है और हो, प्यार मिलता रहे। He desires to be loved by everybody. उस डिजायर में डिफरेंट कैरेक्टर्स की लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन जिसको आप बोल्ड बोलते हैं, बोल्ड नहीं, बिकॉज आई डोंट मेक रोमांटिक फिल्म्स, व्हाट यू कॉल, आई डोंट मेक रोमांटिक, आई मेक फिल्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। नॉट रोमांटिक बट अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्रीचर। मेरी पिक्चर में कोई विलेन मैप नहीं होता रोमांटिक फिल्मों में। आई बिलीव आदमी खुद हीरो है, खुद ही विलेन है, डेस्टिनी हीरो है, डेस्टिनी विलेन है। मैंने खुद सोच लिया कि मैं इसे लव करूंगा, ये मेरी चॉइस है ना, मेरा डिसीजन है, वो रॉन्ग भी उसका राइट हो सकता है। और इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ somebody may can come in your life again. You gain love, you gain that person. You are not being dishonest to anybody. लेकिन उस वक्त खुद आप विलेन है, डेस्टिनी विलेन है, इसे प्लेइंग। We're talking just now, you talk about a man living with two wives. If you have seen the film, or if you remember the film, it is destiny's playing part. He is not doing anything wrong. This desire, this greed of love is a very, very complex thing. I'm not making film just to be bold for bold's sake. Yeah. I've used the word, I want to make a different film. If a boy meets a girl, loves them, some family objections come and they part of their love. This is no story. Icon to me. This story has to be a bit different in shape of some characters coming in his life. The different बनाएंगे तो different characters आएंगे. I still believe that at any stage of your life, you never say I won't love now. I believe the person feels that he is not loving anybody, he doesn't love anybody, nobody loves him. He should not live. It's no right to live. Or if you think you don't love somebody and nobody loves you, you should not live only. But we whole thing is based on love. Sometimes love is just, you'll say boy and girl. No, there is a lot of things. I make a film, I love that for making it film. You are working with me, you're not working with just for it, you're working that. I love that project, I want to be in it. And the budget will release, people, Shah Rukh Khan's there. I believe you should make different films. Absolutely. And all his films always have good people in the films, but of course doing wrong, and he believes
wrong by some moral, social yardstick. But that's what life is. And that's why the fact that he even takes those wrongs with positivity and shows it with so much love and care, we seem to accept a lot of things which we may talk about when we are not watching that film. And I have unfortunately did not watch Lamhe Yash Ji. मैं आपको आज बताना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, बहुत खूबसूरत फिल्म, लेकिन मैं आज ही देखी वो पिक्चर, पूरी फिल्म नहीं देखी मैंने वो। उसका एक रीज़न है, मैं मुंबई आ गया था फिल्मों में काम करने के लिए, और मैं लम्हे पिक्चर देख रहा था, मेरे दोस्त थे साथ में विवेक वासवानी, जो मेरी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, और हम हॉल के अंदर पिक्चर देखने गए थे लम्हे, एंड वी वर वाचिंग इट, एंड देन सडनली माय सेक्रेटरी लेट अनवर ही केम, एंड उसने मुझे बोला यश जी जो है एक पिक्चर बनाने वाले हैं और उसमें लगता है तुम्हें कास्ट करने वाले हैं, तो वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा सिलसिला चल रहा था आपके साथ बहुत पहले विवेक सिनेमा से, तो मैंने ये भी नहीं पूछा कि आज बुला रहे हैं, अभी बुला रहे हैं कि नहीं। मैं लम्हे आधी छोड़ के आपके ऑफिस आ गया था आपसे मिलने के लिए। सो दैट सेकंड पार्ट ऑफ लम्हे I did not watch because of you, which I will see later. And we move on to the years of 90s, which I call the modern era of Mr. Yash Chopra, because उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में बनाई, ऐसी अलग किस्म की फिल्में बनाई जो शायद यंगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ 90s भी नहीं बना सके और शायद अब भी नहीं बना सकते। ही मेड अ फिल्म कॉल्ड डर, जिसके अंदर जो वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट्स, he actually introduced I think the term protagonist, hero type ही होता है हिंदी फिल्म के अंदर। So the protagonist was kind of negative, so to say, to make it simple, और लेकिन फिर भी passionate था, प्यार करता था। फिर उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाई जिसमें पूरा जो डांसिंग या गाने जैसे पिक्चराइज होते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत एक अहम हिस्सा है, उनका पूरा एक टर्न अराउंड कर दिया। ऐसे कोरियोग्राफर के साथ काम किया जिसने शायद पहले फिल्में कभी की नहीं थी, शामक, एंड एवरीबॉडी आई रिमेंबर बिफोर दैट फिल्म यूज्ड टू से, अरे यार यस जी अभी क्या थिएटर पे डांस पे फिल्म, यार अब तो बड़ा मॉडर्न हो गया है। इट वाज मोर मॉडर्न देन एनी एग्जिस्टिंग फिल्म ऑन दोज सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम। दिल तो पागल है। उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो आई एम श्योर यस जी हिमसेल्फ मस्ट हैव पास्ड इन हिज एज एंड हिज टाइम, माय फादर डिड, द पार्टीशन, which is kind of forgotten for the people of our era. He reintroduced and made people realize this cross-border love story through Veer Zara. So ये इतनी अलग-अलग किस्म की फिल्में 90s के अंदर उन्होंने बनाई। I really think apart from this wonderful films that he's made before, this was a huge change around. और इस change around के अंदर एक चीज कॉमन थी, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, सही नहीं लगता मुझे। भूल रहे हो, एक चीज कॉमन थी वो। हाँ प्लीज, क्या थी? शाहरुख। लेकिन तुम ये भूल रहे थे। आप पूछा नहीं सवाल किसी ने मुझे, आज तुमने बोला तो मुझे ख्याल आया। मैं पूछना नहीं चाह रहा था, you know that, मैं ऐसी गलती से निकल गया। You are working with me last 20 years. I started working with you from Dar till today. I have not seen the hero. कुछ कारण तो होगा। तुम्हें अगर ये गुमान है या वहम है कि इसलिए कारण है कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, मेरे का शायद कारण नहीं है। शाहरुख, तुम एक एक्टर हो 20 साल में जो मुझे मिले, जिसने मुझे आज तक ये नहीं पूछा कि आपकी स्टोरी क्या है। आदि ने लिखी है या आपने लिखी है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं। तुमने कभी ये सवाल नहीं किया अब मुझे पैसे क्या दे रहे हैं। बल्कि अगर मैं लोगों को बताऊं, किसी पिक्चर में तुमने एक पैसा नहीं लिया ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो लास्ट वीक में बिफोर द पिक्चर रिलीज आई सेंड यू चेक, तुम्हारा नेक्स्ट फोन आता था, यह जी आपने पैसे ज्यादा ही भेज दिए यार, मैं ऐसा तो नहीं किया। मुझे याद है कि हम पिक्चर बनाते, मैं तुम्हें बहुत गुस्से में फोन किया एक बार, नहीं शाहरुख तुम मैं पिक्चर बना रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तुम आके मिलते ही क्यों नहीं यार, तुम बिजी हो माना पर मिलो सही। तो मैं अभी आता हूँ, फैसला कर देता हूँ। तो मैं बोला ये चीज मैं क्यों मिलूं आपसे, बोलिए मैंने आपसे क्या लेना है। स्टोरी मैंने आपसे सुननी नहीं, जो स्टोरी आपकी मैं काम कर रहा हूं। पैसे मैंने आपसे मांगने नहीं, जो आप देंगे मैं ले लूं। मेरी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं आपके पीछे शुरू करूंगा उस दौरान मैं क्या और काम नहीं करूंगा, जब तक आपके पीछे खत्म हो जाएगी। तो मैं अभी क्यों मिलूं आपसे, कुछ इन चीजों में तबादला हो रहा है, नहीं हो रहा। यू टोल्ड मी कि यह चीज फिल्मों की पैसों की वजह से, किसी और की वजह से मैं फिल्म नहीं करता हूं। फिल्म मैं करता हूं दिल से। जब मुझे लगे मैं ये फिल्म कर रहे हैं, ये आदमी मुझे पसंद है,
जब आदि लिखेगा और आप डायरेक्ट करेंगे, मुझे पूछने की जरूरत क्या है? तो मुझे याद होगा कि जब वीर ज़ारा बना रहा था मैं, तो उन्होंने बोला हाँ कर रहे हैं, ठीक है करेंगे करेंगे। होते होते मेरी शूटिंग हो गई, मैं सेट लग रहा था। मैंने कहा शाहरुख, मेरा सेट लगा हुआ फिल्म सिटी में, तुम्हारा एक दिन का काम है? अच्छा अच्छा, आप फिक्स कर लीजिए, जब बोले मैं आ जाऊंगा। मेरी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में, मैं होने की बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा तेरी कल शूटिंग है। तो अच्छा आ गया। तुमने अपनी शूटिंग कैसे कर दी? तुम आ गए, क्या कपड़े हैं वो करण जौहर ने बनाए क्या, या क्या? ठीक है सब खींचा। और सेट पे आए, वो एक गाने का अंतरा ही था, आपको याद होगा, मैं कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, अंतरा तय कर लिया सब काम। कहते आदि को बुलाया, देखो यार तुम लोग मुझे मरवा दोगे, अभी तुमने आउटडोर जाना है, सारा काम शुरू, ना मुझे स्टोरी पता, ना मुझे कैरेक्टर पता, ना मुझे कपड़े पता, वो तो बता दो आज। लेकिन गाना मैंने ठीक ठाक गा दिया था फिर भी, बहुत फर्स्ट क्लास है। मतलब आज तक अगर हमारे पे कॉन्फिडेंस है और हमें तुम पे कॉन्फिडेंस है, तो इन 7 पिक्चरों में एक याद है, हमने तुम्हारे से 7 पिक्चर बनाई है, 7, और बाय द ग्रेस गॉड ऑल 7 आर सुपर हिट्स। यस माशाल्लाह। सिर्फ एक है, हम दूसरों के एक ट्रस्ट है, विश्वास है कि हम ना तुम्हारे से बेईमानी नहीं करेंगे, ना तुम करोगे। मैं लोगों को बताऊं आज पिक्चर हमारी कंप्लीट है, यू आर नॉट गिवन ए सिंगल पेनी। तुम पिक्चर बनाते हो, मेरे पास पैसे बनाने के लिए बहुत रिसोर्सेज है, मैं डांस करता हूँ, गाने करता हूँ, एंडोर्समेंट करता हूँ, क्या पिक्चर में दिल से बनाऊंगा, वो करूंगा पैशन। हमारा ट्रस्ट ये है, मेरा एक और ट्रस्ट है कि यश जी जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां चुन चुन कर मेरे साथ फिल्मों में डालेंगे। कोई पैसा पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, ऐसा खड़ा हो जाऊंगा मैं कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर, लड़कियां आएंगी, गले लगेंगे, प्यार करेंगे, उफ। Well, Jesse, now to now, I know it's our own film, maybe we should not be talking, but we are here and I'm sure a lot of people want to know also. अब जो हमने फिल्म बनाई 20 साल के बाद काम कर करके, और ये वाली 7 या 8 साल के बाद हमने बनाई वीर ज़ारा की। The film is जब तक है जान। Why did you decide to make this film? आप बीच में बहुत वक्फे ले लेते हो ना, टाइम ले लेते हो, 7-8 साल लेते हो, मुझे बीच में टेंशन हो जाती है कि मुझे निकाल तो नहीं दिया, कि मिस तो नहीं हो गया। So अभी आपने बहुत सालों बाद एक बनाई है, तो ये वाली क्यों चूज की, कैसे की, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? And why did you think this was the time and this was the place and this was the film that you want to make now? जब तक है जान। आफ्टर वीर ज़ारा कुछ और जिम्मेदारी मेरे पे आ गई कि मैं स्टूडियो बनाए जहाँ बैठे हुए हैं। 2004 में वीर ज़ारा रिलीज हुई थी, 2005 में ये स्टूडियो अक्टूबर में शुरू हो गया। स्टूडियो को सेट करना है, कुछ और पिक्चरें बनानी है, कंपनी सेटअप करनी है। एक आधी पिक्चर बना था, रब ने बंदा जोड़ी, उसमें भी तुम थे। और सबसे बड़ी बात थी कि कुछ एक्साइट नहीं कर रहा था कि यार क्या बनाऊंगा यार, आजकल बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। You like the films that you see दूसरे लोगों की, जो सब फिल्में बन रही हैं आसपास, आप सब देखते हो, अच्छी लगती हैं? अच्छी फिल्म, यंग मेकर्स आर मेकिंग डिफरेंट फिल्म्स, अच्छी फिल्में, नए सब्जेक्ट्स, बुरी भी बन रही होंगी, अच्छी तो बहुत बने। यंग फिल्मर्स आर राइटिंग द नेम्स ऑफ इंडियन फिल्म्स ऑन वर्ल्ड मैप। मैंने एक दिन वीजा के बाद लोग बोलते थे कि यार कैसी पे कब बनाएंगे पिक्चर। मैंने एक दिन आदि को बोला यार मूड आ गया पिक्चर बनाने का यार, पर यार पिक्चर ऐसी हो सोल मेरी हो, मीन्स ओल्ड फैशन, सोल मेरी हो और जबान जवान हो, तुम्हारी जबान हो, जवानों की आवाज जबान हो, जो मैं बात कह सकूं उस आवाज में कह सकूं, लेकिन मैं अपनी सोल या अपनी ईमानदारी ना भूलूं। इट्स नॉट ए फिल्म गॉट टू मी, शाहरुख, दिस फिल्म इज नॉट ए फिल्म, दिस फिल्म इज ए गिफ्ट टू मी बाय आदित्य चोपड़ा। He is the producer of this film, he is the story writer, he is screenwriter, he is the dialogue writer. He came to me कि डैड आप फिल्म बना रहे हैं, आई एम योर असिस्टेंट, आप किसी से कुछ कोई बात नहीं करेंगे, आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी विश है, मैं पूरी करूंगा। मेरे नीचे होंगे लोग, वो दे वोंट बी इन कॉन्टेक्ट विद यू। आपको छोटी सी चीज चाहिए, बड़ी चीज चाहिए, हम दोनों डिस्कस करेंगे, आप मुझे बोलेंगे। And he has been a very good assistant to me.
पूछे भाई ये सोल ओल्ड और जबान नहीं यंग, ये कैसे है? आई हैव सीन ऑल अराउंड मी टेक्नीशियंस, फिल्म बनाते टेक्नीशियंस होते हैं ना, क्या अनिल मेहता, क्या शर्मिष्ठा रॉय, क्या वैभवी, क्या नम्रता, क्या दिलीप भाई साउंड रिकॉर्डिस्ट, यंग, दे गिव मी पॉजिटिव यंग फीलिंग। मैं भी यंग बहादुर, यंग बहादुर, मैं भी तो कह रहा हूँ। एंड दे वर्क लाइक ए मिशन, वी शुड डू आवर बेस्ट टू मेक Yaji happy. And they have been successful. But that's extremely magnanimous of you. There are very few directors in this country who would say that the gift that the technicians are giving to you by making this film for you, and they keep you young. There are wonderful technicians in their fields, the best possible in India. Absolutely. And are all wonderful human beings. All are good human beings. Yeah, you only work with good human beings. But there is one other little thing. छोटी सी 3 बातें पूछूंगा आखिर में मैं आपसे. एक उनमें से ये है कि किसी भी लड़की का कहते हैं करियर जो है, मतलब क्या कहते हैं वो, मुझे हिंदी का वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती फिल्मों में आने के लिए, स्पेशली लड़कियों की, जब तक वो यश चोपड़ा की हीरोइन ना बने। ऐसा मुझे सब लड़कियां बोलती हैं जब भी मैं अकेले में उनके साथ बैठ के बात करता हूं। आपको नहीं बोलती? मुझे नहीं, मैं अकेले में बैठी कुछ और पूछना चाहता हूं, लेकिन वो यही बोलती रहती है यश जी के साथ पिक्चर करा दो यार, तुम अपनी बाकी रोमांस छोड़ो। So why is it? And in all seriousness, because I've seen you work, I've worked with a lot of them, all the greatest of actors and actresses, wonderful ladies, from Madhuri to Juhi to Kajol and Preeti and Rani, and of course now Anushka and Katrina. And मैं किसी को भूला तो नहीं ना, बाद में मारेगी नहीं? हाँ, all of them are said. But having said that, what is it about your upbringing, your thoughts, your beliefs that the women in your film, see, कपड़े तो सब पहनाते हैं अच्छे फिल्मों में, मेकअप सब लड़कियां करती हैं, शूटिंग भी बड़ी तामझाम से होती है, सब अच्छा ही होता है, but why is it the girls and the women in your film look so beautiful, so special, so warm and so extremely woman-like, even if they play a negative role or a harder role or a tough role, and they're never disrespected? Why is it like that? Thing is this, that I believe after the nature of God has created certain natures, snowfall, rain, meadows, valleys, flowers. The most beautiful thing God has made is woman. After nature, the most beautiful thing that God has made is woman. I respect all women. There are so many forms of woman. She comes as a mother, she comes your wife, she comes as a sister, she comes your daughter, she comes as a friend. I don't see ever any badness in woman. Sometimes I feel, I read somewhere this ad caption, not this story. This film is shot entirely on location, inside a woman's heart. Wow. They are very emotional. And I feel very bad sometimes when I see these TV serials, all women are bad characters. And when I see that God has made such beautiful girls, I am presenting them on the screen. It's my duty to present them beautiful. As I work hard on story, screenplay, dialogues, sets, production designing, I work in the same with hard labor, honestly, on costumes. I sometimes cancel 50, 60 costumes if they don't come in my vision. And when finally they come, they should be beautiful, because I feel everybody wants to see a beautiful girl, even you. मैं तो पैदा इसलिए हुआ इसी। Actually, हम दोनों काम ही इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं। इस मामले में मिले ख्यालात बहुत मिलते हैं हमारे। But having said that, would you the latest actresses in our film, Katrina and Anushka, if you'd say a few words about them, how was it working with them? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। Katrina is one of the most beautiful girls in the Indian screen. She's a very hard-working girl. I shouldn't say because my film, I think today, this film, she's done great performance. She looked gorgeous. Anushka has turned out to be a very good actress.
and you are the privileged, you are the lucky one to have both of them in my picture, having the best of both the worlds. मैंने आपको बताया इसलिए तो कुछ पूछता नहीं आपसे मैं। कुछ नहीं, तुम कुछ पूछते नहीं हो, तुम वो करते हो जो तुम्हारा दिल करे, जो और आप- तुम्हारा दिल हमेशा अच्छे करता है। अच्छा ही करता मेरा।